morning, students. Today we'll start the first chapter of Standard 8 Maths. We are familiar with the natural numbers, whole number, integers, and rational numbers. These are the three numbers: natural number, whole number, integer, and rational number. Four numbers are there. Now the natural numbers. What are natural numbers? Natural numbers are 1, 2, 3, 4, and so on. These are natural numbers. It will go on. These are natural numbers. And what is the whole number? Whole number starts from 0, 1, 2, 3, 4, and so on. And what are integers? Integer means, you have seen number line. In the number line we write integer negative numbers on the left hand side. Suppose this is -4, -3, -2, -1, then comes 0, and the positive number on the right hand side, 1, 2, 3, and 4, and so on. These are integers. And what are rational numbers? The numbers of form m and n are called rational numbers. What are rational numbers? Rational numbers means the number of the form m upon n. M upon n. It should be in this form, in the fraction form, are called rational numbers. Are called rational numbers. And n is not 0, and n is not 0. If n is 0, it will become meaningless. If n is 0, then any number upon 0 is meaningless. Now let us see some examples of rational numbers. Let us see some examples of rational numbers. Examples of rational numbers. As we see, m upon n, it is what? It is fraction. It can be either positive or negative. Suppose this 25 upon 3 minus 25 upon 3. This is a negative fraction. It is also a rational number. If 10 upon minus 7, this is also a fraction. It is a rational number. Minus 4, it is also a rational number. Why it is a rational number? Here denominator is not there, but denominator is there, that is 1. Denominator is nothing but 1. We can write it minus 4 upon 1. This is a rational number. Okay. Then 0 upon 1. Then 3 upon 3 is a rational number. It can be written as 3 upon 1. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 8 है, 8 भी रैशनल नंबर है, 8 को लिख सकते हैं 8 अपॉन 1. वैसे ही दूसरे एग्जाम्पल्स है, दैट इज 32 अपॉन 3, ये भी रैशनल नंबर्स है. 67 upon 5, ये भी rational numbers है, etc. Okay. Now I have given you the introduction of numbers, natural numbers, that is 1, 2, 3, and so on. Whole numbers,
दैट आर 0 1 2 3 4 और इंटीजर्स जो लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव इंटीजर आते हैं नंबर लाइन पे और फिर 0 आता है और राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन आते रहेंगे वो इंटीजर्स। और रैशनल नंबर्स मैंने तुम्हारे सिखाया है जो है m/n जो फ्रैक्शन है और n 0 नहीं है, n 0 होगा तो वो मीनिंगलेस हो जाएगा। रैशनल नंबर्स के एग्जाम्पल भी दिए हैं। नाउ वी विल स्टार्ट विथ एक्सरसाइज। प्रैक्टिस सेट 1.1। now question 1 curve 1 it is given 3/2 5/2 and 3/2। now we have to prepare a line, number line. I told you that we can express these integers in the number line. These are all positive integers. We can express this in the number line. We have to express the rational numbers on the number line. First we'll draw a line. Let us draw a line. We'll draw a number line. Suppose I drew a line. This is a line. This is a number line. I drew it. Now, there are centimeters given in your scale. I can mark it. Put a dot. Just put a dot. This is 1 centimeter. 1 centimeter पे एक dot. 2 centimeter पे दूसरा dot. 3 पे 4 पे 5 पे. Just put a dot on this centimeters. Okay. अच्छा ये हो गया। अब how many dots we have put? We have put 14 dots, है ना। 14 dots अपन ने रखे हैं। तो यहाँ बीच में डॉट, यहाँ पे सपोज ये सब पॉजिटिव है तो नेगेटिव तो आएगा नहीं, तो अपन यहाँ पे 0 यहाँ ले लेते हैं। आई कैन पुट 0 हियर ऑल्सो, लेकिन ये 2 3 छोड़ देते हैं, 0 यहाँ ले लेते हैं क्योंकि 5/2 है। नीचे क्या है? डिनोमिनेटर इज 2। नीचे डिनोमिनेटर इज 2। जब 2 इज डिनोमिनेटर then what we have to do, it is a fraction means rational number। तो अपन क्या करेंगे, देखो इजी तरीका क्या है, इसको 0 है यहाँ पे तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 then 2/2। दिस 2/2 मीन्स क्या? 2 1 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 1 जा, इसका मतलब है 1, इसका मतलब है 1। अब 1 यहाँ आया मेरा, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा? 3/2 जो मुझे चाहिए, तो इसको मैं बोलूँगा p, इसको नाम दे दूंगा क्योंकि मेरे को दिखाना है 3/2। मैंने दिखा दिया p 3/2 यहाँ आ गया। देन क्या आएगा? 4/2। देन आएगा 5/2। अब इसको भी मुझे दिखाना है यहाँ पे, या माइनस भी है तो माइनस वाला बाद में करेंगे, पहले प्लस वाले पे करेंगे। तो 5/2 इज देयर, तो इसको भी लिखेंगे 2 5/2 q, ये p और q यहाँ लिखे हैं। अब इस साइड में -1/2 देन -2/2 and -2/2 is nothing but it is 1। even this 2 1 जा 2 2 जा, ये 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा, ये 2 है नंबर लाइन पे। अब यहाँ पे -3/2 ये मुझे चाहिए था, तो इसको लिख सकते हैं अपन a, ठीक है। हाँ, ये -2/2 इज नथिंग बट इट इज -1, -1। तो आई हैव डन द फर्स्ट सम। सपोज द सेकेंड सम विच इज गिवन is 7/5 -2/5 and -4/2।
5. This is given. If this is given, then again I have to draw a line. Again I have to draw a line. Let's draw a line first. I have to draw a big line because it is 7 upon 5 is there. 7 upon, this is a big number line. ये बड़ी लाइन बना दो. अब देखो नेगेटिव में कितना है, -4 अपॉन 5 है, तो मुझे यहाँ पे 5 स्पेस 5 सेंटीमीटर का छोड़ना पड़ेगा. 1 2, वी हैव ऑलरेडी ड्रॉन 1 सेंटीमीटर का डॉट्स, तो आई हैव टू लीव 4 places and write a 0 here because -4 is there. तो 1 2 3 4 then 5, ये 4 places के लिए -4 के लिए रखा लेफ्ट हैंड साइड में, देन मैं 0 डाल दिया यहाँ पे. अब यहाँ पे नीचे 5 है, तो ये कैसा आएगा, वहाँ 2 था तो 1/2 आया, यहाँ 5 है तो क्या आएगा 1/5. पहले पॉजिटिव नंबर्स लेंगे. 2/5, 3/5, 4/5, 5/5. 5/5 is nothing but it is what, 5 ones are 5 ones are, it is 1. 6/5 and 7/5. मेरे को 7/5 दिखाना है नंबर लाइन पे, तो आई विल पुट इट P. कुछ भी दे सकते हैं, मैंने P दिया है. अब नेगेटिव पे आओ, यहाँ पे माइनस आएंगे तो -1/5, -2/5, -2/5 चाहिए मुझे, मैं इसको A दे दूंगा. -3/5 ये नहीं चाहिए, ऐसे ही रखो. -4/5 इसको मैं बोलूँगा B. तो आई हैव पुट दिस रैशनल नंबर्स, put this rational numbers on the number line. I have plot this rational numbers on the number line. Okay. Now we will move to the next question, that is we have to observe the number line. We have to observe the number line. Look at this number line. या नंबर लाइन पे देखो, इस साइड नेगेटिव है, इस साइड पॉजिटिव है, या O पे 0 है ना. अब यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए, विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट B. तो B पे कौन सा नंबर आएगा बताओ. देखो यहाँ पे -2 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे पहले स्टार्ट करेंगे यहाँ से, कितने, ये 1 2 3 4 है ना. तो मैं तुम्हारे को ये नंबर लाइन बना के पहले दिखाता हूँ, तब समझेगा इजीली. अपन बना लेते हैं नंबर लाइन. इस नंबर लाइन पे अब यहाँ पे कितने डॉट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डॉट्स इस तरफ है, तो इस पे नहीं आएगा ये. एक काम करते हैं, 2 नंबर लाइन बनाते हैं अपन, नेगेटिव के लिए अलग एंड पॉजिटिव के लिए अलग, समझने के लिए. अब देखो ये नेगेटिव की एक नंबर लाइन बनी है, एक पॉजिटिव की. अब नेगेटिव की नंबर लाइन में मैं यहाँ पे 0 ले लेता हूँ, इसको O बोलता हूँ, ठीक है. अब इसके बाद जो है, जैसे अपन डॉट्स करते हैं, डॉट्स करो 1-1 सेंटीमीटर का. अब मुझे 0 के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने है ये डॉट्स, 1 2 3, तो यहाँ पे आएगा 1/, यहाँ 4th पे -1 है, तो 1/4 मीन्स -1/4, -2/4, -3/4, then -4/4, that is 1,
minus 4 upon 4 is 1, minus 4 upon 4 is 1, minus 1, it is minus 1. अब इसके बाद क्या दिया है, ये -1 के बाद फिर डॉट है, फिर -2 आएगा, तो मतलब 8 आना चाहिए, तो -5 अपॉन 4, -6 अपॉन 4, -7 अपॉन 4, अब ये -8 अपॉन 4, इसको बोलेंगे 2, -2, ये -2 है, ठीक है। अब मुझे ई का चाहिए, ई कितना दूर है, देखो मैंने पहले इसको लिख दिया, ये -1 था, और ई कितना दूर है, एक छोड़ के, ये एक छोड़ दिया, यहाँ पे ई है, तो ई इज़ वॉट, -6 अपॉन 4। अब बी कितना दूर है, देखो ये 9 अपॉन 4 आएगा, और ये 10 अपॉन 4 आएगा। अब बी यहाँ पे है, ये बी का वैल्यू है। अब एक छोड़ के फिर यहाँ ए आएगा, ए कितना है, -3, ओके, ये माइनस के नंबर्स हो गए। अब बी का पॉइंट का वैल्यू मेरे को मिल गया, कितना है, पॉइंट बी इज -10 अपॉन 4, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते, -10 अपॉन 4 को अपन कैंसिल करके 2 अपॉन 5 भी लिख सकते हैं, ओके, आइदर ऑफ द आंसर्स आर करेक्ट। This is 1. Now the second one is which point indicate 1 3/4? अब 1 3/4 means what? This is nothing but, इसको improper fraction में convert करो, 1 into 4 plus 3 upon 4, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से प्लस करना है, अपॉन 4, 1 4 ज़ा 4 प्लस 3 अपॉन 4, दैट इज 7 अपॉन 4। 7 अपॉन 4 कहाँ है, तो ये पॉजिटिव है, तो अपने को पॉजिटिव नंबर लाइन के लिए अपन को जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं 0 लूँगा, पॉजिटिव राइट हैंड साइड पे होता है। देखो मैंने दो नंबर लाइन को अलग अलग दिखाया है, नेगेटिव अलग पॉजिटिव अलग, क्योंकि यहाँ जगह नहीं था, ठीक है। तो अब ये 4 वाला है, तो यहाँ पे 1 अपॉन 4, 2 अपॉन 4, 3 अपॉन 4, 4 अपॉन 4, 5 अपॉन 4, 5 अपॉन 4, 6 अपॉन 4, 7 अपॉन 4, 8 अपॉन 4, 9 अपॉन 4 एंड 10 अपॉन 4 तक मैंने लिया, क्यों लिया मैं बताता हूँ। 7 अपॉन 4 हो गया। अब दिस 7 अपॉन 4 यहाँ पे है, मुझे 1 अपॉन 3 प्लॉट करना है, मतलब 7 अपॉन 4 प्लॉट करना है। यहाँ पे इसको अपन क्या बोलेंगे, ए तो हो गया है ना, वहाँ पे पी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पी, ये हो गया पी। अब दूसरा जो है यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन दिया है द पॉइंट डी डिनोट्स नंबर 5/2। 5/2 कहाँ है, यहाँ पे 5/2 दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, तो 5/2 कैसे मिलेगा, दिस 10/2 जो लास्ट में मैंने लिखा हूँ, दिस इज नथिंग बट 10/4, यानी 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, ये 5/2 होता है। तो मुझे अगर 5/2 प्लॉट करना है यहाँ पे, तो मैं कहाँ पे प्लॉट करूँगा, 10/4 पे, इसको बोलूँगा क्यू। तो इज दिस स्टेटमेंट ट्रू, या इट इज ट्रू। D denotes 5/2 is true, and this 7/4 is what, it is P, it is